My dear students, welcome to Mythological. In this session, we'll be discussing concepts of coordinate geometry. Start करते हैं session को. So we'll be discussing about Cartesian coordinate system. Followed by distance formula, distance between 2 points, and then section formula. Okay, which will be followed by area of a triangle and vertice coordinates of centroid and in center. कैसे फाइंड आउट करेंगे, and also condition for collinearity. And slope of a line. So this is the agenda for this session. Start करते हैं. So first of all, what is the Cartesian coordinate system? Cartesian coordinate system. Basically, in a coordinate system, we use a pair of numbers which are called coordinates to specify a particular point. एक example से समझते हैं. So this horizontal axis is called x-axis, the vertical axis is called y-axis, and the rightwards direction of x-axis is positive x-axis, the leftward direction is negative x-axis. So left of 0 is negative x-axis, right of 0 is positive x-axis, upwards is positive y-axis, and downwards is negative y-axis from origin 0. And origin 0, origin के coordinates होंगे 0, 0. ठीक है. So origin से ही हम start करेंगे. Let us say we are going a distance 3 units in the right, a distance 3 units in the right. So we'll reach this point. Okay, and then we are going 4 units upwards, 3 units in the right and 4 units upwards. So first coordinate, x coordinate will be 3 and y coordinate will be 4. 3, 4 will be the coordinate of this point. Let us say this is point P. Okay, and x coordinate is called abscissa, while y coordinate is called ordinate. Okay, clear है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. Let us say we are going 2 units in the left, so x coordinate will be -2, and then we'll be going 5 units downwards, so y coordinate will be -5. So point Q, let us say this is point Q, the coordinates of point Q will be -2, -5. Is this clear? ठीक है. Coordinates of point Q will be -2, -5. Okay. So now, since we've understood that in this particular quadrant, we'll be dividing the whole plane in 4 quadrants. So this will be first quadrant, this will be second quadrant, this will be third quadrant, and this will be fourth quadrant. In the first quadrant, x coordinate is positive, y coordinate is also positive. In the second quadrant, y coordinate तो positive but x coordinate negative है, और पहले आता है x coordinate, तो x coordinate will be negative and y coordinate will be positive. Third quadrant में both are negative, and in the final quadrant, fourth quadrant, x coordinate is positive but y coordinate is negative. X is positive but y coordinate is negative. Okay. Clear? So now let us say there is a point A, coordinates for which are 3 and -1. There is a point B, coordinates for which are -5 and 2. And there is a point C, coordinates for which are -3, -3. Now pause the video and identify which point will be belonging to which quadrant. एक और point लेते हैं, point D.
5, 4. Which point will be belonging to which coordinate? Which quadrant? So point A को coordinates हैं 3, -1. X coordinate is positive but Y coordinate negative है. X coordinate positive है, so this will be rightwards of 0. ठीक है, but Y coordinate हमारा negative है -1, so this will be in the 4th quadrant. और पॉइंट को मार्क करना हो तो x coordinate है हमारा 3, so we'll be moving 3 units in the right and then 1 unit downwards. So 3, 1, this will be point A in the 4th quadrant. Second point -5, 2, x coordinate negative है, so -5 and then y coordinate is positive, so -5, 2, this will be the point B in the 2nd quadrant. Point C -3, -3, so x coordinate negative, y coordinate negative, -3, -3, this will be the point C in the 3rd quadrant. And point D 5, 4, x coordinate positive है, y coordinate भी positive है, 5, 4 will be this point D in the 1st quadrant. Is this much clear? दो और पॉइंट्स ले लेते हैं for better clarity. Let us say there is a point E 2, 0 and there is a point F 0, 3 0, 4. So point E is 2, 0, x coordinate तो 2 है but y coordinate 0 है. X coordinate is 2 but y coordinate is 0. So this will be the point E. And if y coordinate is 0, then point will be on x axis because y coordinate 0 है. तो कई बार क्वेश्चन में मेंशन होगा पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस. जब भी मेंशन हो पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस तो डेफिनेटली y कोऑर्डिनेट 0 होगा. या फिर मेंशन है पॉइंट इज ऑन y एक्सिस देन x कोऑर्डिनेट 0 होगा, विच इज पॉइंट F में वाला केस. सो x कोऑर्डिनेट 0 है यानी कि दिस विल बी पॉइंट ऑन y एक्सिस. पॉइंट विल बी on y axis because x coordinate 0 है. 0, 4, x coordinate is 0, y coordinate is 4, this will be point F. ठीक है. Now coming to distance between 2 points. Distance between 2 points. So if there are 2 points x1, y1 and x2, y2, okay, random points x1, y1 and x2, y2, let us say this is point A, x1, y1 and this is point B, x2, y2, and we need to find out distance AB. What will be this distance AB? Okay, so formula for this, AB will be equal to, or distance between them will be equal to square root of x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared. This will be distance between points A and B. x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared. अब पॉइंट A तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया? टू रीच पॉइंट A वी मूव्ड x1 यूनिट्स, जो कि यहाँ पे 2 है, बट फिलहाल जो वैल्यूज है उनको इग्नोर करो. ठीक है, सो वी हैव मूव्ड x1 यूनिट्स इन द राइट एंड देन y1 यूनिट्स अपवर्ड्स. तब तो पॉइंट A पे पहुंचे. और पॉइंट B पे पहुंचने के लिए वी मूव्ड x2 यूनिट्स इन द राइट एंड y2 यूनिट्स अपवर्ड्स. तब तो पॉइंट B पे पहुंचे. इजंट इट सो? सो बेसिकली x कोऑर्डिनेट के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन x कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B and difference between y coordinates of A and B. So those will give us horizontal distance and vertical distance. And since if this is let us say point P, so triangle APB is a right angle triangle. So AP distance हमें पता चल जाएगा, PB पता चल जाएगा, accordingly AB पता लग जाएगा because AB क्या है? hypotenuse है. So AP will be, this distance will be x2 minus x1. AP will be equal to x2 minus x1. Similarly BP distance क्या होगा? This will be y2 minus y1. So AB will be equal to, AB square will be equal to AP square plus BP square. So AB square is equal to AP square यानी x2 minus x1 whole square और BP square यानी कि y2 minus y1 whole square. And hence the formula is AB is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, clear है? ठीक है. Now let us discuss section formula for internal division.
section formula for internal division. So if there is a line AB, एक लाइन AB assume कर लेते हैं, and point A is x1, y1, point B is x2, y2, and there is a point P somewhere in the middle. ठीक है, point P is such that it is dividing AB line in the ratio m:n, यानी कि AP upon PB, this is equal to m by n. And if that is the case, AP upon P is equal to m by n, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं पॉइंट P के. लेट अस से कोऑर्डिनेट्स आर x, y. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y. तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स विल बी x, y विल बी, x कोऑर्डिनेट विल बी m into x2 plus n into x1, m into x2 plus n into x1 divided by m plus n, comma y coordinate will be m into y2 plus n into y1 upon m plus n. ओके, तो m is to n में अगर पॉइंट P डिवाइड करता है तो m will be multiplied by x2, n will be multiplied by x1 for x coordinate and will be divided by m plus n. तो mx2 plus nx1 divided by m plus n. Similarly y coordinate के लिए भी dividing, we will be multiplying m by x2, m by y2, m y2 plus n y1 divided by m plus n. ठीक है, एक ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को कि लेट अस से कि m को हम 0 एज्यूम कर लें आउट ऑफ m एंड n. अगर हम m को 0 एज्यूम कर लें तो रेशियो क्या होगा, 0 by n होगा. और 0 by n का मतलब क्या हुआ कि यानी कि a एंड p विल बी कोइंसाइडिंग. अगर हमने 0:n में डिवाइड किया है तो यानी कि फर्स्ट पार्ट तो 0 है, यानी कि p और a कोइंसाइड करेंगे क्योंकि फर्स्ट पार्ट AP तो 0 हो जाएगा. और अगर p a के साथ कोइंसाइड कर रहा है यानी कि व्हेन m इज इक्वल टू 0 देन p के कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू a का कोऑर्डिनेट. इजंट इट सो? और अगर ये बात समझ में आती है तो यानी कि उस केस में व्हेन m इज इक्वल टू 0 पुट करोगे सो हमारा वैल्यू p के कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू a का कोऑर्डिनेट. m 0 आते ही हमें फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, nx1 by n यानी कि दैट विल बी x1, ny1 by n यानी कि दैट विल बी y1. तो x1 y1 व्हिच इज पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स ओनली. क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके. नाउ जस्ट इन केस देयर इज अ स्पेशल केस व्हेन m is to n is 1:1. So if m is to n is equal to 1:1 यानी कि p is dividing AB in two equal parts या फिर p मिड पॉइंट हो जाता है 1:1. तो यानी कि p is dividing AB in two parts और p is the midpoint. So if p is the midpoint then coordinates of p will be x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. This will be points of the midpoint, coordinates of the midpoint. Okay, clear? Now बस सिमिलर ही फॉर्मूला है एक्सटर्नल डिवीजन का भी. बस इसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो इफ पॉइंट्स आर ए एंड बी एंड देयर इज अ पॉइंट पी दैट इज डिवाइडिंग ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो m is to n. सो दिस विल बी m, दिस विल बी n रेशियो में. ठीक है, सो ए बी ए पी बाई बी पी, दिस इज m by n. ओके, m by n. और coordinates of point A are x1, y1, coordinates of point B are x2, y2. So coordinates of point P will be again m x2, बस बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस n x1 डिवाइड बाई m माइनस n, और m y2 minus n y1 divided by m minus n. So these will be coordinates of point P in this case. Okay, clear है? ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं. क्या तक बात समझ में आती है? So first question, starting with the easy question. So the first question is find the distance between A and B. Okay, find the distance between A and B. और A के coordinates हैं 3,5, coordinates of B are 7,8. So AB distance will be equal to square root of x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared. So this will be equal to x2 minus x1, x2 is 7 minus 3 whole squared plus y2 minus y1 whole squared यानी कि 8 minus 5 whole square. So square root of 4 square plus 3 square. 16 plus 9 is square root of 25 which will be equal to 5. So answer will be AB will be equal to 5. Okay, AB हमारा equal to 5 आ जाएगा. क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अभी इस बात को एक और तरीके से समझ के देखते हैं.
करेंगे ऐसे ही, बट इस सेकंड मेथड समझ में आ जाएगा तो कई बार हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। देखो ऐसा समझो कि पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, we moved 3 units in the right and then 5 units upwards, that is point A. अब अगर point B तक जाना है further from point A, तो point A पे already we have moved 3 units rightwards and 5 units upwards, तो बस हमें 4 units extra जाना है rightwards and 3 units extra जाना है upwards, will be reaching point B. So net distance between A and B क्या हो जाएगा, right angle triangle है, 4 square plus 3 square का स्क्वायर रूट, यानी कि that will be square root of 25 which will be equal to 5 only. क्या है, क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा x कोऑर्डिनेट्स के बीच डिफरेंस कितना है, 4 यूनिट्स का, y कोऑर्डिनेट के बीच डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट्स का, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वही सेम चीज तो हम कर रहे हैं, बस समझने का पर्सपेक्टिव अलग है। तो ऐसे भी देख सकते हो कि नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, कर वही फॉर्मूला तो वही सेम अप्लाई कर रहे हैं, बट क्या ये बात ऐसे समझ पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है? ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से देयर इज अ पॉइंट C 7, 12 and there is a point D 12, 24 and we need to find distance between C and D. Distance between C and D, तो x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस कितना है, +5 and y कोऑर्डिनेट डिफरेंस कितना है, +12. So 5 rightwards, 12 upwards, distance between C and D will be 13 units. बात हो गई रिपीट, 5, 12 and 13 वाला 13 units distance होगा, isn't it so? Clear? Next question, if the distance between A and B where coordinates of A are 3,7 and coordinates of B are A, 12 और distance हमें given है 13 units, find the sum of all the possible values of A. Sum of all the possible values of A. Okay. So solve करते हैं, A, 12 है, 3,7 है, so distance AB will be equal to square root of A minus 3 whole squared plus 12 minus 7 whole squared, that is equal to 13. So this will become square root of A minus 3 whole squared प्लस 5 स्क्वायर इज 25 इज 13, स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करते ही इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, a माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर विच इज 169. सो a माइनस 3 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 169 माइनस 25 144 आ जाएगा विच विल 12 का स्क्वायर, isn't it so? लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाओ, तो a माइनस 3 होल स्क्वायर minus 12 square, this is equal to 0. So this is a square minus b square का फॉर्मेट, तो this will be a plus b into a minus b. So a minus 3 plus 12 into a minus 3 minus 12 which is equal to 0, यानी कि a plus 9 into a minus 15, this is equal to 0. अब अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट 0 है तो डेफिनेटली आउट ऑफ दोज टू एटलीस्ट वन विल बी 0, एक 0 होगा कम से कम. सो a विल बी इक्वल टू -9 और a विल बी इक्वल टू 15, टू पॉसिबल वैल्यूज. तो सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या आ जाएगा, -9 + 15 6 आ जाएगा. सिक्स आ जाएगा. Isn't it so? क्लियर है? अब ये हो गया एक मेथड सोचने का. सेकंड मेथड इज डिस्टेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स इज 7 और 12 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 यूनिट्स का. टोटल डिस्टेंस है 13 यूनिट्स का और y कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट. सो x कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी 12 यूनिट्स. Isn't it so? है कि नहीं? तो अगर हमारा y कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स का है, x कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस होगा 12 यूनिट्स का, तभी तो डिस्टेंस हमारा टोटल 13 यूनिट्स आएगा. ओके क्या ये क्लियर है? और ये जो 12 यूनिट्स का हमारा डिस्टेंस है, दिस कुड बी इन दिस डायरेक्शन और इन दैट डायरेक्शन, या तो लेफ्ट वर्ड होगा या फिर राइट वर्ड होगा. तो 3 में इधर यू ऐड, इफ दिस इज 3,7 दिस विल बी 3,12. ठीक है, वैसे तो ऊपर आएगा बट बात समझ रहे होगे. ठीक है, सो 3,12 हो गया हमारा. अब या तो 12 तुम सब्ट्रैक्ट करोगे एक्स कोऑर्डिनेट में या फिर ऐड करोगे, यानी कि इधर इट विल बी -9,12 और इट विल बी 3 + 12 15,12. तो 2 पॉइंट्स आर देयर व्हिच विल सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन, जहां से कि डिस्टेंस 13 आएगा. दो एक्चुअल कंडीशन में हमारा जो डायग्राम है वो जस्ट अपोजिट बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, बट बात समझ रहे होगे. क्लियर है? ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर. -9 + 15, आंसर विल बी 6. ओके
Next question. Find the coordinates of point P which divides line segment joining A and B in the ratio 3:1 internally. Internally division हो रहा है in the ratio 3:1. Points A and B क्या है 1, -2 and 5, 10. This is P. Ratio is 3:1. So coordinates of point P will be 3 into 5, 15 plus 1 into 1, 1 divided by 3 plus 1, comma 3 into 10, 30 plus 1 into -2, which will be -2, divide by 3 plus 1. So this is 15 plus 1, 16 by 4, which will be x coordinate will be 4 और y coordinate आएगा 30 - 2, 28 by 4 यानी कि 7. तो 4, 7 will be the coordinates of point P. ठीक है. Next question. Next is P 6, 7 and Q 9, 1 are 2 points and point R divides PQ externally in the ratio 4:3. So find the difference of abscissa and ordinate of point R. Difference of abscissa and ordinate of point R क्या होगा? Okay. So P 6, 7, Q 9, 1 एक्सटर्नल डिवीजन है और रेशियो क्या है? रेशियो है 4:3 का. So coordinates of point R will be 4 into 9, 36 minus 3 into 6, तो -18 divided by 4 - 3, comma 4 into 1 minus 3 into 7 divide by 4 - 3. तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पॉइंट आर के 18, -17 और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट है हमारे 17, एब्सिसा है 18, डिफरेंस आ जाएगा हमारा 18 माइनस -17, दैट विल बी 35. डिफरेंस विल बी 35. ओके, क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ पॉइंट P A, 10 divides line segment joining point A 10, 12 and point B 3, 5 in the ratio m:n and m and n are relatively co-prime integers, then we have to find m plus n. There is a good question. This is a good question. अच्छा सवाल है. Pause the video and try to solve it. एक पॉइंट A है, P है, जिसके कोऑर्डिनेट्स है हमारे A, 10 and that divides line segment AB in the ratio m:n. m and n are relatively co-prime, तो have to find m plus n का वैल्यू क्या होगा. ठीक है. पहली चीज तो यहाँ पे अननोन क्या है? दिस A is unknown, x coordinate of point P. Then further m और n, there are 2 more unknowns, isn't it so? और हमें इक्वेशन कितनी मिलने वाली है? इक्वेशन तो 2 ही मिलेंगी, 2 ही इक्वेशन मिलेंगी. कैसे सॉल्व करेंगे इसको? So A is 10, 12 and B is 3, 5. Now since here we have to find out ratio m:n, एग्जैक्ट वैल्यू तो चाहिए नहीं. ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू में डिस्टेंस थोड़ी चाहिए m और n का, हमें तो रेशियो चाहिए, तो रेशियो तो मिल जाएगा. ओके, सो लेट अस से दिस इज पॉइंट P एंड इंस्टेड ऑफ एज्यूमिंग m:n, हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि द रेशियो इन विच P इज डिवाइडिंग AB लाइन, दैट रेशियो लेट अस से इज k:1. तो अभी हमने 2 की जगह एक ही अननोन अपना एज्यूम कर लिया. k का जो वैल्यू आएगा लास्ट में फ्रैक्शन में आएगा, चांसेस है फ्रैक्शन में आएगा. फ्रैक्शन में आएगा तो फिर उसको m और n में कन्वर्ट कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे. बट अभी फॉर द टाइम बीइंग हम एक ही अननोन एज्यूम करते हैं, एज अननोन के इंस्टेड ऑफ 2 अननोन्स. ठीक है, k:1. अब निकाल लो कोऑर्डिनेट्स. सो k into 3 प्लस 1 into 10 करके x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो. बट x कोऑर्डिनेट के साथ प्रॉब्लम क्या है? x कोऑर्डिनेट हमारा आ रहा है a, जो कि अपने आप में अननोन है, जो खुद भी अननोन है. तो उसको निकालने के बजाय इन सच ए क्वेश्चन फॉर्म द इक्वेशन फॉर द वैल्यू दैट इज नोन. ठीक है, तो अननेसेसरली a के लिए इक्वेशन बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें. 10 के लिए इक्वेशन बनाओ, बिकॉज 10 इज नोन, y कोऑर्डिनेट इज नोन फॉर पॉइंट P. तो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट निकालो. y कोऑर्डिनेट क्या होगा? दैट विल बी k into 5k प्लस 1 into 12, तो प्लस 12 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 10. y कोऑर्डिनेट ऑफ P.
यहां से k की वैल्यू मिल जाएगी 5k प्लस 12 इज इक्वल टू 10k प्लस 10. So 5k will be equal to 2 and hence k will be equal to 2 by 5. k came out to be 2 by 5 यानी कि k is to 1 रेशियो हमारा क्या आ गया इक्विवेलेंट टू 2 by 5 is to 1 या 2 is to 5. And since m and n are co-prime तो 2 और 5 भी आपस में को-प्राइम, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं. अगर 4 is to 10 आया होता जस्ट इन केस तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करके 2 is to 5 करते, बट ऑलरेडी इट इज इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म 2 is to 5, तो हमारा m प्लस n आ जाएगा इक्वल टू 7. दिस विल बी इक्वल टू 7. क्या ये क्लियर है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, then find x and y क्या होगा? Again pause the video and try to solve it. And to solve this question, you need understanding of geometry as well. अगर geometry के तुम्हें parallelogram के properties नहीं पता होगा तो ये question solve नहीं कर पाओगे. तो parallelogram की properties का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा. Solve करो. So 4 points are vertices of a parallelogram taken in order. Okay. और यहाँ पे भी हमें y coordinate of the second point and x coordinate of the third point unknown है. And we have to find out x और y का value क्या होगा. So in a parallelogram, we know that the opposite sides are parallel. Also opposite sides are equal as well. And then diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. Isn't it so? Diagonals का लेंथ इक्वल नहीं होता है हमेशा. इक्वल सिर्फ होगा स्क्वायर के केस में इक्वल होगा, रेक्टेंगल के केस में इक्वल होगा, बट अदरवाइज इक्वल नहीं होगा. बट यस, दे आर ऑलवेज बाइसेक्टिंग. सो द मिड पॉइंट ऑफ अ डायगोनल और सेकंड डायगोनल का मिड पॉइंट वो तो सेम होंगे बिकॉज बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. Isn't it so? तो यहाँ पे हमें यही सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना पड़ेगा दैट मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स आर इक्वल. ओके, मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल, आर सेम और कोइंसिडेंट. ठीक है, बेसिकली डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. So if this is point A, B, C and D, और point A है हमारा 1, 2, point B is 4, y, point C is x, 6 and point D है 3, 5. मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, बस क्वेश्चन हो जाएगा. ओके, सो इफ दिस इज पॉइंट O, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O as per line AC, भाई मिड पॉइंट ऑफ AC है, so O is mid point of AC as well as BD. So as per AC, x coordinate क्या आएगा? That will be x plus 1 divided by 2. And as per BD, mid point क्या आएगा? 3 plus 4 divided by 2. So यानी कि x plus 1 is equal to 7, x आ जाएगा equal to 6. Similarly, y coordinate 6 plus 2 divided by 2 as per AC, and as per BD, y plus 5 divided by 2. So y will come out to be equal to 3. X is equal to 6 and y is equal to 3. Those will be the answers. क्या ये क्लियर है? ठीक है. Okay, next question. Two opposite vertices of a square are A 2, 4 and C 6, 10. Find the area of the ring between circumcircle and incircle of the square. दो opposite vertices given है. Area of the ring between the circumcircle and incircle of the square हमें find out करना है. To find out this, we need to find out circumradius and inradius. तभी तो ring between the those two circles का area हम find out कर पाएंगे. So if this is our square,
this will be circumcircle, and this will be incircle. So center of both will be same. ठीक है, both circles will be concentric, and if this is the center point O, this will be in radius and this will be circumradius, capital R. And if side length of a square is A, if side length is A, then 2 times capital R, or diameter of the circumcircle will be equal to length of diagonal. Length of diagonal के बराबर होगा. So 2R will be equal to A root 2, and hence capital R will be equal to A root 2 by 2. Secondly, small r की वैल्यू क्या होगा? Diameter of in circle will be equal to side length of the square, यानी कि 2 times small r will be equal to A. So small r will be equal to A by 2. और क्वेश्चन में 2 opposite vertices का coordinates given है for points A and C. So if this is point A, let us say 2,4, this will be point C, 6,10. So यहाँ से we can find out the length of the diagonal. So AC will be equal to the square root of 2 minus 6 whole square plus 4 minus 10 whole square. So 4 square plus 6 square, 16 plus 36. So that is root 52 or 2 root 13. So length of diagonal is 2 root 13. और डायगोनल की लेंथ क्या है? साइड का रूट 2 टाइम्स है, यानी दिस इज ए रूट 2. सो इफ ए रूट 2 इज इक्वल टू रूट 52, सो साइड लेंथ ए विल बी इक्वल टू रूट 52 बाई रूट 2. सो दिस विल बी रूट 26, एंड हेंस कैपिटल आर हमारा आ जाएगा ए रूट 2 बाई 2. ठीक है, तो या तो 2 रूट 13 बाई 2 कर दोगे, रूट 13 आ जाएगा. कैपिटल आर इज इक्वल टू रूट 13 और स्मॉल आर है a डिवाइडेड बाई 2, सो रूट 26 बाई 2. बट ये रूट 13 नहीं आएगा, गलती नहीं करनी है. 2 को लेके जाओगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो दैट विल बी 4. सो इस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 26 बाई 4, सो दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6.5 और 13 बाई 2. सो कैपिटल आर इज रूट 13, स्मॉल आर इज रूट 6.5. और हमें चाहिए एरिया ऑफ दिस रीजन, एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन सर्कमसर्कल एंड इनसर्कल, दिस रीजन. सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर. सो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. और कैपिटल आर स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा? कैपिटल आर है रूट 13, तो कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 13. तो पाई इंटू 13 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर है 6.5. सो आंसर विल बी 6.5 पाई और 13 बाई 2 पाई. दिस विल बी द आंसर. 6.5 पाई विल बी द आंसर इन दिस क्वेश्चन. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे मूव ऑन करते हैं. सो नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ अ लाइन. स्लोप ऑफ अ लाइन. So let us say we are drawing a general line segment AB. This is point A, this is point B. Okay, और point A के coordinates हैं 1, 3. Coordinates of point B are this is 7, this is 6, 7, 6. And we need to find out what is the slope of this line. Okay, तो slope of a line is, इसको extend करते हैं. और एक्सटेंड करके दिस इज द पॉइंट वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग विद एक्स एक्सिस. स्लोप ऑफ अ लाइन इज एंगल फॉर्म्ड विद एक्स एक्सिस. दिस विल बी स्लोप ऑफ द लाइन, एंड इफ दिस एंगल इज थीटा, देन स्लोप m इज इक्वल टू tan theta. Slope is equal to tan theta, and since this line will also be parallel to x axis, so angle
हियर विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा, ये भी तो एंगल थीटा होगा. सो tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर वैल्यू यहां पे कितनी है, दिस इज 6 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 3, और बेस आ रहा है हमारा 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6. सो tan थीटा विल बी इक्वल टू 3 अपॉन 6 विच इज 1/2. तो स्लोप इन दिस केस फॉर दिस लाइन विल बी इक्वल टू 1/2. बट जनरल फॉर्मूला for the slope will be equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, which is also equal to rise divided by run. y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ठीक है, और slope in general is equal to angle made by the line with x-axis in anti-clockwise direction. The direction is very important. In anti-clockwise direction, measured from the x-axis. Okay. क्या ये क्लियर है? सो इन जनरल लेट अस से हमारी एक लाइन हमने फॉर्म की, दिस इज दैट लाइन. Okay, so slope will be this value, this angle, the angle in the anti-clockwise direction, and measure from the x-axis. ठीक है, so this will be the slope. Okay, क्या ये क्लियर है? अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ये भी है, बट ये वैल्यू हम मेजर कहां से कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग फ्रॉम द लाइन, और लाइन से मेजर नहीं करना है, सो दिस विल बी द रॉन्ग एंगल. ठीक है, सो आवर स्लोप विल बी दिस एंगल थीटा, और स्लोप हमारा आ जाएगा m इज इक्वल टू tan थीटा. ओके, ठीक है. सो द जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन in slope intercept form. The equation is given as y is equal to mx plus c, where m is the slope and c is y intercept. M is slope and c is y intercept. Okay, so if the graph of the line is like this, this is the graph. So this value, if this is angle is theta, so m is equal to tan theta. Okay, and this is the y intercept. So this will be equal to c, and coordinates of this point will be 0, c, and this point must satisfy this equation. Rather, if there is any point x1, y1 on the line, ठीक है, there is a point x1, y1 on the line, so the point must satisfy the equation of the line. The point must satisfy equation of the line. Only then the point is on the line. If this is not satisfying the equation, then definitely the point is not on the line. Okay, clear है? ठीक है, any point on a line must satisfy the equation of the line. That is a must condition. Now, if two lines are parallel, then their slope will be equal, because जो वो एंगल फ्रेम करेंगे with x axis, that will be same. So that is why m1 will be equal to m2. The slope of first line will be equal to second line if both lines are parallel. Okay, ठीक है, and if lines are perpendicular instead, if lines are perpendicular, let us say this is the first line, this is the second line, and lines are perpendicular. slope पहली line का m1 है, second line का m2 है, तो m1 into m2, this will be equal to -1.
द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स, दिस विल बी इक्वल टू -1. ओके, ठीक है. सो विद दिस अंडरस्टैंडिंग लेट अस do more questions. Next question. At the points a, 0, 0, b and 2, 2 are collinear, then find the value of c if 1 by a plus 1 by b is equal to 1 by c. What will be value of c? 3 points are collinear, so what will be value of c? Now if 3 points are collinear, they are lying on the same line. ठीक है, maybe this is the first point, this is the second point and this is the third point. ठीक है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, कोलिनियर है यानी कि सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. एंड इफ दे आर लाइंग ऑन द सेम लाइन तो स्लोप कैलकुलेट करोगे फॉर एनी 2 पॉइंट्स दैट शुड बी सेम. स्लोप तो तब भी सेम होगा बिकॉज सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं. इजंट इट सो? क्या ये क्लियर है? देखो, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, दो चीजें हो सकती हैं. फर्स्ट थिंग इज स्लोप calculated for any pair of points will be same, is equal. Slope same होगा. Second thing is that if points are on the same line, तो area of triangle made by any 3 such points, any 3 collinear points is 0. बिकॉज ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनेगा नहीं, ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा. तो दीज आर द 2 टेस्ट्स टू चेक द कोलिनियरिटी, 2 टेस्ट चेक द कोलिनियरिटी. तो यहां पे अभी हमने सेकंड वाला मेथड तो सीखा नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो फर्स्ट मेथड सॉल्व करते हैं, दैट स्लोप फॉर एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स विल बी इक्वल. ओके, क्या ये क्लियर है? तो फर्स्ट 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. तो ए बी का स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ ए बी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. स्लोप ऑफ ए बी विल बी y2 minus y1 यानी b minus 0 upon 0 minus a, और slope of bc will be 2 minus b upon 2 minus 0. So b upon minus a, this is equal to 2 minus b by 2. Cross multiply कर दो तो this will be 2b is equal to minus 2a plus ab. 2b is equal to minus 2a plus ab यानी 2a plus 2b, this is equal to ab. ये इक्वेशन आ गई हमारी. बट हमें इक्वेशन चाहिए इस फॉर्मेट में 1 by a plus 1 by b is equal to 1 by c. तो हमें a और b डिनोमिनेटर में चाहिए. सो डिवाइड दिस इक्वेशन बाय a b. बट न्यूमिनेटर में 1 भी चाहिए तो 2ab से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2ab. देखो अभी इक्वेशन आ रहा था हमारा 2a plus 2b is equal to ab, बट हमें चाहिए डिनोमिनेटर में a और डिनोमिनेटर में चाहिए b और न्यूमिनेटर में चाहिए 1, तो डिवाइड बाय 2ab. जैसे 2ab से डिवाइड करो 2a by 2ab क्या हो जाएगा? दैट विल बी 1 by b. 2b by 2ab विल बी 1 by a and ab by 2ab will be 1 by 2. 1 by b plus 1 by a is equal to 1 by 2 and this was supposed to be equal to 1 by c. So c must be equal to 2. So answer आ जाएगा c is equal to 2. Okay, clear है? c is equal to हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Now the question is saying if the line 3x plus 2y is equal to 12 intersects x-axis and y-axis at points A and B respectively and point C with ordinate equal to 3 cuts the line segment AB in 2 parts, then we have to find the length AC क्या होगा. So C is a point that is between these two axes, x और x-axis और y-axis के बीच में है, और ordinate is given as equal to 3 for the point C. Okay, and we need to find out length AC क्या होगा. What will be length AC? एक तरीका तो यह कि पहले हम A और B पॉइंट्स को फाइंड आउट करें और फिर उसके बाद में C पॉइंट के बारे में बात करें. दैट इज वन मेथड, इजंट इट सो? बट हमें अल्टीमेटली क्वेश्चन में क्या चाहिए? लेंथ AC चाहिए. हमें अल्टीमेटली लेंथ AC चाहिए क्वेश्चन में फाइनली. ठीक है, सो पॉइंट C को फाइंड आउट डायरेक्टली कर देते हैं बिकॉज उसका ऑर्डिनेट हमें पता है एंड पॉइंट C मस्ट बी सेटिस्फाइंग दिस लाइन इक्वेशन बिकॉज लाइन पे तो लाई कर रहा है. तो इन दिस लाइन इक्वेशन लेट अस से पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स है हमारे a, 3 बिकॉज ऑर्डिनेट इज y कोऑर्डिनेट a, 3. सेटिस्फाई करा दो लाइन इक्वेशन को. 3x plus 2y is equal to 12 यानी कि 3 into a plus 2 into 3 दिस विल बी इक्वल टू 12. तो यहां से हमारा a is equal to 2 आ जाएगा. तो पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 3 2, 3. ओके, और पॉइंट A इज ऑन द x एक्सिस.
पॉइंट ए इज ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट बी इज ऑन द वाई एक्सिस, और हमें चाहिए लेंथ क्या, लेंथ ए सी चाहिए। पॉइंट सी पता है, बस पॉइंट ए को और पता कर लेते हैं। एक्स एक्सिस पे है पॉइंट ए और एक्स एक्सिस पे है, दैट इंप्लाइज कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं, लेट अस से बी है। अगेन सेटिस्फाई द लाइन इक्वेशन, लाइन हमारा है 3x + 2y = 12, यानी कि 3b + 2 × 0 इज इक्वल 12, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए 4, 0, बस अब डिस्टेंस AC निकल आएगा। सो AC विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 होल स्क्वायर, सो दैट इज 4 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 13। सो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अब अगर पॉइंट बी भी निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हैं, बट जरूरत कोई नहीं थी क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन से लेंथ AC पूछ रहा था, लेंथ AB पूछता तो ए और बी दोनों निकालते, या कुछ और कंडीशन पूछता कि सी लाइन AB को किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है तो फिर पॉइंट बी को भी निकालना पड़ता और अकॉर्डिंगली फिर रेशियो फाइंड आउट करते। बट यहां तो ऐसी जरूरत ही नहीं। ठीक है, तुम कमेंट में मेंशन कर देना कि AC इज टू CB क्या होगा इन दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the points 3, 7 and -1, 5 are opposite vertices of a parallelogram and the other two vertices lie on the line 3x + ky is equal to 7, then find the value of k. दो पॉइंट्स हमें गिवन है और दोज टू पॉइंट्स आर अपोजिट वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, और बाकी दो वर्टिसेस जो बचे हैं दे आर लाइंग ऑन द लाइन 3x + ky is equal to 7, then find the value of k. What will be value of k? अब यहां पे कैसे सॉल्व करोगे? अगेन पैरेललोग्राम है, so two vertices are given 3, 7 and -1, -5, and the other two vertices lie on the line 3x + ky is equal to 7. So we know that in case of parallelogram the diagonals bisect, और अगर diagonals bisect करते हैं तो mid point of this, if this is ABCD, तो mid point of AC will be on the line BD. Mid point of AC will be on BD, line BD, because diagonals bisect करते हैं। तो बस मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल लो। इफ मिड पॉइंट इज पॉइंट O, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O विल बी 3 - 1/2, 7 - 5/2, so this will be 2/2, यानी 1, 1. So 1, 1 must satisfy this equation because इसी इक्वेशन पे लाई कर रहा है पॉइंट O. So 3 × 1 plus k × 1, this is equal to 7, and hence k will be equal to 4. So k will be equal to 4. Actual line is 3x + 4y is equal to 7. ठीक है, डी और बी पॉइंट्स क्या है इनको हम पता नहीं लगा सकते, बिकॉज ये पैरेललोग्राम तब भी रहेगा जब डी और बी पॉइंट्स यहाँ पे होंगे, तब भी रहेगा जब ये पॉइंट्स और क्लोज आ जाएंगे, तब भी रहेगा जब ये पॉइंट्स और फार्दर चले जाएंगे। तो हम डी और बी की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता लगा सकते, बट दे विल बी ऑन दिस लाइन ओनली एंड देयर मिड पॉइंट विल डेफिनेटली बी पॉइंट O. ठीक है, सो हम एक रिलेशनशिप जरूर एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि लेट अस से पॉइंट D हैज x1, y1 कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट B का कोऑर्डिनेट x2, y2, और पॉइंट O हमारा मिड पॉइंट है और O का कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 1, यानी कि x1 + x2/2 इज इक्वल टू 1, यानी x1 + x2 आ जाएगा 2, सिमिलरली y1 + y2 भी आ जाएगा 2। तो दिस विल बी रिलेशनशिप बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B एंड D। तो ये रिलेशनशिप तो हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, बट इससे ज्यादा हम पता नहीं लगा सकते एग्जैक्टली कि पॉइंट B और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट क्या होंगे इस केस में। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। So next question, find the point on the x-axis which is equidistant from 1, -4 and -3, 8. Point on the x-axis, x-axis पे पॉइंट है यानी कि y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो पॉइंट विल बी समवेयर लाइक 1, A, 0,
एक्स कोऑर्डिनेट को ए एज्यूम कर लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, एंड पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। और अगर इक्वी डिस्टेंट है तो डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इफ दिस पॉइंट इज लेट अस से सी, दिस इज ए, दिस इज बी, तो सी ए विल बी इक्वल टू सी बी, सी ए विल बी इक्वल टू सी बी, इजंट इट सो? ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 4 यानी कि 4 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस माइनस 3 यानी कि ए प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 8 होल स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर। स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स में, सो आफ्टर स्क्वायरिंग दिस बिकम्स a minus 1 whole square यानी कि a square minus 2a plus 1 plus 4 square which is 16 is equal to a square plus 6a plus 9 plus 64. a square and a square gets cancelled out, equation बन गई है सिंपल लीनियर, 6a plus 2a 8a is equal to 17 minus 73, so minus 56. 8a is equal to minus 56, so a comes out to be equal to minus 7. So coordinates of point C will be minus 7, 0. ओके, क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड, और ऐसे ही सॉल्व करेंगे मोस्ट केसेस में। बट एक सेकंड मेथड और है जो यहाँ पे समझ में आता है मुझे, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। बिकॉज हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है और पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट्स 1, -4 एंड -3, 8, इजंट इट सो? ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? ओके, सो देखो, let us first draw these 2 points. Point A is 1, -4 and point B is -3, 8, and this is the line joining those 2 points. Okay, और पॉइंट जो है हमारा है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, a, 0 विल बी द पॉइंट, इक्विडिस्टेंट है। ओके, ठीक है, सो इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी, लाइन ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, सो कैन वी से, अगर ज्योमेट्री तुमने ढंग से समझा है, जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं, तो यू कैन अप्रिशिएट दैट एनी पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर बाइसेक्टर विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। एनी रैंडम पॉइंट ऑन दिस पर्टिकुलर बाइसेक्टर विल बी इक्विडिस्टेंट। ठीक है, एनी पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। सो जो हमारा पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, दैट विल आल्सो बी ऑन दिस पर्टिकुलर बाइसेक्टर ओनली। इसी पॉइंट पे तो लाई करेगा, इसी लाइन पे तो लाई करेगा, isn't it so? So a, 0 will also be somewhere on this point, this line, और मिड पॉइंट भी लाई करेगा इसी पे, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, और ए और बी का मिड पॉइंट क्या आएगा? लेट अस से मिड पॉइंट इज इक्वल टू m। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 - 3/2 यानी -1, कॉमा -4 - 8/2 यानी -6। So -1, -6 is the midpoint of AB and that will also lie on this line, isn't it so? एक सेकेंड, -4, 8 था, तो मिड पॉइंट आ जाएगा हमारा, -4, 8 था, तो दिस विल नॉट बी 6, ये आ जाएगा हमारा 2, -1, 2 विल बी द मिड पॉइंट। ओके, सो मिड पॉइंट से पर्टिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया, पर्टिकुलर बाइसेक्टर विल बी गोइंग थ्रू मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करेगा, और हमारा a, 0 पॉइंट C विल आल्सो लाई ऑन द सेम लाइन। अब स्लोप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ MC, M1 M2, अगर स्लोप ऑफ AB है हमारा M1, स्लोप ऑफ MC है M2, तो M1 इंटू M2 क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और M1 की वैल्यू क्या आएगा? M1 यानी स्लोप ऑफ AB विल बी 8 - -4 अपॉन -3 - 1 मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ लाइन MC, तो दैट लाइन MC का स्लोप क्या आएगा? a -1 यानी a + 1 अपॉन -2, दिस विल बी इक्वल टू -1, so 8 + 4 12 by -4, so this will be equal to -3 into a + 1 upon -2 is equal to -1, माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो a + 1 comes out to be equal to -2/3। ओके, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया है कहीं पे,
ये -3 ऊपर क्यों ले आए, तो नीचे ही था, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तो दिस इज a+1 इंटू 12 बाई -4, हाँ तो -3 तो आएगा ऊपर, इंटू 12 बाई -4 तो -3 आएगा अपॉन -2, सो दिस विल बी 2। क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है, ब्लंडर किया है भाई। दिस विल बी 0 -2, न्यूमरेटर में आएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई a -1 यानी a+1। ओके, so this comes out to be -3 into -2 upon a+1, this is equal to -1, तो 6 upon a+1 है -1, so -a -1 will be equal to 6, ठीक है, so a will be equal to -7, a will be equal to -7, तो आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सब अप्रिशिएट कर पा रहे हो, क्लियर है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, centroid of a triangle। So if you have a triangle ABC with coordinates x1, y1, x2, y2 and x3, y3 and centroid is G, the coordinates of centroid G are x1 plus x2 plus x3 divided by 3, y1 plus y2 plus y3 divided by 3, ठीक है, फॉर्मूला सिंपल। अदरवाइज देख सकते हो कि डी वैल्यू मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो पहले डी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो और फिर जी विल बी डिवाइडिंग ए डी इन द रेशियो 2:1, मीडियन को डिवाइड करेगा 2:1 के रेशियो में, तो अकॉर्डिंगली हमने जी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अल्टीमेटली फॉर्मूला ये आना है, तो बस सीधे से फॉर्मूला याद कर लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, यानी कि बेसिकली एवरेज ऑफ ऑल द x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। सिमिलरली इफ साइड लेंथ आर, ए के अपोजिट साइड लेंथ है हमारा ए स्मॉल ए, बी के अपोजिट साइड लेंथ है स्मॉल बी और सी के अपोजिट साइड लेंथ है स्मॉल सी, then coordinates of in center, if in center is I, then coordinates of in center are ax1 plus bx2 plus cx3 divide by a plus b plus c, comma ay1 plus by2 plus cy3 divide by a plus b plus c. This will be coordinates for in center, okay. Finally, area of the triangle. Area of the triangle. So if coordinates are x1, y1, x2, y2 and x3, y3, then area of the triangle will be equal to 1/2 mod x1 multiplied by x1 multiplied by y2 minus y3 plus x2 multiplied by y3 minus y1, y3 minus y1 plus x3 multiplied by y1 minus y2 in the modulus.
मॉड का यहाँ पे सिर्फ इतना मतलब है, तुम बिना मॉड के भी कैलकुलेट करोगे चलेगा, बट अगर लास्ट में एरिया की वैल्यू नेगेटिव आती है तो तुम्हें पॉजिटिव वैल्यू लेना है. दैट इज व्हाट द मॉड्यूलस इज इम्प्लाइंग. ओके, so area will be 1/2 times x1 multiplied by y2 minus y3 plus x2 multiplied by y3 minus y1 plus x3 multiplied by y1 minus y2. अब एक दो एग्जांपल क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर, उसके बाद में सेशन को रैप अप करते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ ट्रायंगल ABC coordinates of vertices A and B of the triangle are 3,6 and 8,12 respectively, and its centroid G is 6,8. To find the coordinates of vertex C. What will be coordinates of vertex C? Let us assume कि vertex C के coordinate होंगे a, b, small a, small b. ठीक है, या p, q मान लेते हैं. coordinates of vertex C are p, q. तो centroid के coordinates क्या हो जाएंगे? x1 plus x2 plus x3 by 3, यानी कि 3 plus 8 plus p divide by 3, and that will be equal to x coordinate of centroid G, that is 6. So 11 plus p is equal to 18. So p is equal to 7 आ जाएगा. Similarly y coordinate क्या होगा? 6 plus 12 plus q divide by 3, and that is equal to 28 आएगा. 8. So 18 plus q is equal to 24, and hence q will be equal to 6. So p is equal to 7 आ गया, q is equal to 6 आ गया. Coordinates of vertex C will be 7,6. This will be the answer, 7,6. Okay, ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1, 1, 6, -4 एंड -5, -3. तो दिस इज x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3. तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 mod x1 is -1, तो -1 इंटू y2 minus y3, तो -4 -3. निगेटिव साइंस का ध्यान रखना, ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? प्लस x2, और x2 है 6 इंटू y3 minus y1, यानी -3 -1 प्लस x3 विच इज -5 इंटू y1 minus y2, यानी 1 -4. दिस विल बी 1/2 इंटू -1 इंटू -4 -3, तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे. सो -4 + 3, -4 + 3 विल बी -1, -1 इंटू -1 विल बी +1, प्लस 6 इंटू -4 -24 हो जाएगा, प्लस -5 इंटू 1 + 4 -5 इंटू 5 यानी -25. सो 1 -24 -25 यानी 1 -49, तो -48. So this will be 1/2 times 48, which will be equal to 24 square units. So area will be 24 square units. क्लियर है? ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Find the coordinates of a point P on y-axis such that points A and B and P are collinear. Coordinates of a point P on y-axis such that points A and B and P are collinear. तो अगर points are collinear तो triangle made by A, B and P should be 0. Area should be 0. क्योंकि ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, दैट इज वाई ट्रायंगल का एरिया 0 होगा. और कोऑर्डिनेट क्योंकि पॉइंट P इज लाइंग ऑन द y एक्सिस, सो इफ दैट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस देन डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पॉइंट P के? x कोऑर्डिनेट 0 होगा. सो 0, A मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P. सो एरिया क्या आ जाएगा? 3 पॉइंट्स आर देयर, P 0, A 3, 5 एंड B -5, 3. ओके, सो एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 मॉड x1, और x1 आ रहा है 0. अब 0 में कुछ मल्टीप्लाई करो, फर्क क्या पड़ता है, तो उसको तो 0 ही मान लेते हैं. प्लस x2 इज 3 इंटू y3 -y1 यानी कि 3 - a, प्लस x3 विच इज -5
into y1 minus y2 यानी a minus 5 and this mod this area should be equal to 0. ठीक है, तो अगर ये पूरा पोर्शन हमारा 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो फिर जो हमारा मॉड के इनसाइड का वैल्यू वो भी तो 0 होगा स्ट्रेट अवे. ठीक है, सो सीधे उस पर चलते हैं. तो 3 इंटू 3 माइनस यानी कि 9 माइनस 3a प्लस माइनस 5 इंटू a माइनस 5 यानी कि माइनस 5a प्लस 25. दिस इज इक्वल टू 0. सो 34 minus 8a is equal to 0. So 8a is equal to 34 and hence a will be equal to 34 by 8 यानी 17 by 4. So a is 17 by 4 which implies कि point P के coordinates आ जाएंगे 0,17 by 4. Isn't it so? 0,17 by 4 आ जाएंगे. क्या ये पार्ट क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके. सो इतना ही रखते हैं सेशन में. आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आया होगा. एंड इफ देयर इज एनी डाउट्स व्हाटसोएवर मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट. नेक्स्ट सेशन में वी विल बी डूइंग some more practice questions on these topics और फिर लाइन की कुछ और इक्वेशंस देखेंगे और अकॉर्डिंगली फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन एंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, इन पे बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तो बस इतना ही रखते हैं सेशन में. बाय, टेक केयर एंड कीप रनिंग.